हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर पेपर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डेफिनेशंस अबाउट रे लाइन सेगमेंट वगैरह कराई थी। सो दिस वीडियो इज अबाउट द ट्रायंगल्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, साइड्स के बेसिस पे कितने होते हैं, एंगल्स के बेसिस पे कितने होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो बिफोर ट्रिग्नोमेट्री यू शुड नो अबाउट द ट्रायंगल्स कि वो कितनी तरह की होती है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्राई मतलब तीन, तीन एंगल, तीन एंगल से मिलकर जो फिगर बनती है दैट इज नोन एज अ ट्रायंगल। दैट इज known as a triangle, or simply we can say that polygon which has three sides joined together. Polygon which has three sides which are joined together to form a figure is known as a triangle. Very important question और very important concept, triangle. तो ट्रायंगल सिंपल हमने बता दिया कि तीन, एक पॉलीगन जिसकी तीन साइड्स हो, ज्वाइन हो आपस में, जो जो फिगर बनेगी वो ट्रायंगल होगी, उसमें तीन एंगल होगी। एज अ नेम सजेस्ट ट्रायंगल, ट्राई मींस थ्री और एंगल्स। अब ये ट्रायंगल्स होती कितनी तरह की है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रायंगल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की है। फर्स्ट on the basis of sides and दूसरा on the basis of angles। दो तरह की ट्रायंगल्स, on the basis of sides and on the basis of angle। on the basis of side, the first is scalene triangle, इसको थोड़ा सा elaborate करेंगे। scalene triangle, the second one is isosceles triangle, and the third one is equilateral triangle। Got it? On the basis of sides, scalar, isosceles and equilateral। on the basis of angle, the first is right angle triangle, the second one is acute angle triangle, and the last is obtuse angle triangles। Okay, so triangles दो तरह की, on the basis of side and on the basis of angles। on the basis of side scalar, isosceles, equilateral, on the basis of angle right angle, acute angle triangle and obtuse angle triangle। तो अब इनको अकेले को elaborate करके करते हैं। First, on the basis of side, the first is scalar। What is scalar triangle? A scalar triangle जिसकी जो तीनों sides हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं। What is a scalar triangle? Yes, a scalar triangle, it is a triangle in which all the three sides are of different measurement, like this। मैंने ट्रायंगल ली, उसका नाम ले लिया ABC, ठीक है, मैंने उस वर्ड से इसका नाम ले लिया ABC। अब जो AB की साइड है इट इज 5 सेंटीमीटर, AC is 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज you can say 4 सेंटीमीटर, लेट्स सपोज, ठीक है। So a scalar triangle is a triangle in which all the three sides have different measurement, ठीक है। all three sides are of different measurements। Got it? कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, ऐसी ट्रायंगल ले लो एक देश, ठीक है, इसको भी कोई नाम ले लो। ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है and this is 5 centimeter। This is a scalar triangle because all the three sides are different measurement, so this triangle is known as scalar triangle जिसकी तीनों sides अलग अलग measurement की। I think clear हो गया आपको। Now the next is
isosceles triangle. Isosceles triangle. Got it? Isosceles triangle, very important. A triangle which has two sides of same measurement, A, B, C. This is 4 centimeter, this is 4 centimeter, and this is 5 centimeter. A triangle, isosceles triangle, is that triangle in which two sides are of same measurement and third side is of different measurement. इसमें basically two sides have same measurement. That triangle is known as isosceles triangle. और इसमें एक भी प्रॉपर्टी, इसके जो ये एंगल्स हैं ये दोनों बराबर हैं, ठीक है? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. दिस एंगल इज अगर 45, ये भी 45 होगा. गॉट इट? अगर ये 50 है, ये भी 50 होगा. ठीक है, क्लियर हो गया आपको? द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल हो गया. गॉट इट? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगी? कोई पूछे, द ट्रायंगल इन विच टू साइड्स हैव इक्वल मेजरमेंट या सेम मेजरमेंट, दिस इज नोन एज this triangle is known as isosceles triangle. Got it? Now the last triangle on the basis of side is equilateral triangle. Equilateral triangle. Yes, equilateral triangle अब क्या हो गया? Equilateral triangle is nothing जिसमें तीनों sides have all equal measurement. अब वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट बिल्कुल सेम हो, इट इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. और इसके तीनों एंगल आर इक्वल. अब खुद सोचिए, अगर तीनों साइड्स मेरी बराबर हैं तो उसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे. कैसे? अब कैसे तीनों एंगल बराबर हो सकते हैं? कितनी मेजरमेंट होगी? 60 60 60. Why 60 60? Because 60 plus 60 120, 120 plus 60 is 180 and sum of triangle is 180. यही होता है ना, एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180. therefore 60 60 60. so equilateral triangle is that triangle in which all the three sides have equal measurement and all the angles, the three angles are of 60 degree. got it? I think आपको क्लियर हो गया होगा एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड. अब करते हैं सॉरी एंगल्स ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड. अब करते हैं ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. क्लियर हो गया? यस. द फर्स्ट ट्रायंगल इज, हम लेते हैं acute angle triangle. अब acute से आपको पता लग जाता होगा कि acute means छोटा. अब जिसके एंगल्स छोटे हों, किससे? 90 डिग्री से. Let us suppose मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दी. ये A B C 50 डिग्री, 70 डिग्री, 60, 70 50 60 डिग्री, 120 120 प्लस 60 80 डिग्री. सम तो हमारा 80 180 रहना चाहिए, बट इनकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होना चाहिए. कोई भी एंगल उसकी मेजरमेंट 90 से कम होनी चाहिए. दैट फॉर्म्स अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल. A acute angle triangle is that triangle in which the angles measurements are less than 90 degree. Individual angle measurement, मतलब अकेला अब ऐसा नहीं कि ये 90 हो गया. No, ये भी गलत. ये तीनों भी 90 से कम होने चाहिए. मतलब ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम. That triangle formed is known as acute angle triangle. Very important और very easy है. Acute angle जिसके सारे एंगल्स और 90 डिग्री से कम हो. क्लियर हो गया आपको? नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, और इसको ध्यान से करना. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करनी है, यू शुड नो अबाउट दिस ट्रायंगल बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन दिस ट्रायंगल, साइड ट्रिग्नोमेट्री. तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगी? अ ट्रायंगल which has one angle of measurement 90 degree. जिसकी एक एंगल की मेजरमेंट कितनी हो? 90 डिग्री. बाकी कितने हो? वो कुछ भी 50 40
90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं, अब ध्यान रखना कि दिस साइन, बच्चे ये जो साइन होता है ये साइन 90 डिग्री का, ओके, ध्यान रखना आपने। अब मैंने इसको ऐसे बनाया कि ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये कितने का हो गया, लेट अस सपोज 45 45 बन गया फिर राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये नहीं सोचना कि ये तो ट्रायंगल ऐसी है, ऐसे भी आ सकता है आपको, ये तो सीधी नहीं है ना, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो दैट फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, ध्यान से करिए इसको। राइट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, जिसपे 90 डिग्री का हो ही हो, ओके। नाउ द लास्ट but not the least one, obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. What does obtuse means? Obtuse means greater than 90 degree. A triangle जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, बेशक वो 91 हो, 92 डिग्री हो, 93 डिग्री हो, 110 डिग्री हो, लेकिन एक एंगल 90 से बड़ा होना ही चाहिए। That angles form obtuse angle triangle. क्लियर हो गया? देखिए, let us suppose this. एक 110 40 डिग्री, यस, क्लियर हो गया? यस। अब ये देखो, अब यहां से देखो, इसमें एक एंगल मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, सो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बिकॉज दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये ऑब्ट्यूज। मोर ओवर ये आइसोसेलेस भी बन गई, हाउ ये दोनों एंगल इक्वल, अब एंगल इक्वल इट मींस उनकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगी, तो दिस इज आल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बिकॉज इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। और एक लेते हैं एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, इस एंगल हमने ले लिया 100 डिग्री, ठीक है, ये मेरा हो गया 50 डिग्री, ये मेरा हो गया 40 डिग्री, एक एंगल बन गया 90 डिग्री से बड़ा, सो दिस इज माय ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो दीज आर द कंसेप्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड ट्रायंगल्स की डेफिनेशन, और उनकी टाइप्स होगी आपको, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे इट इज अबाउट द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आपको अगर अच्छी लगी वीडियो हमारी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ऐसे आपके साथ कंसेप्ट शेयर करते रहेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।